of Sandesh Khali. They're not doing enough to reassure the women of Sandesh Khali. Pallavi, if you read the reaction of Didi, of Mamata Banerjee, how it has been so far, of course she has given it back to the BJP as far as political attacks are concerned. I believe the DG is speaking. We'll try and cut across. হাতে যদি কেউ করবে ওটা করতে দেওয়া হবে না। প্ররোচনাতে কারো প্ররোচনাতে পা দিয়ে যদি কাজ করে থাকে ওদের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ব্যবস্থা হবে। রুল অফ ল মানে এটা নেই আমার প্রতি অন্যায় হয়ে থাকে আমি ওটা করতে পারি, আমার আইন আমার হাতে নিতে পারি। এরকম যদি কোনো লোক ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙার চেষ্টা করছে ওর अगेंस्ट ফার্স্ট ব্যবস্থা হবে। কোনো রকম ভাবে এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যারা করবেন তাদেরকে বরদাস্ত করা হবে না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে পুলিশ, সেই সতর্কতা পুলিশের তরফে নেওয়া হচ্ছে এবং একেবারে সতর্কমূলক বাণী। Well, that was the West Bengal DG warning, issuing a warning that anybody who tries to disrupt the law and order situation in Sandesh Khali, the law and order machinery, will take strict action against them. He also said that the police is there to ensure that any kind of exploitation is taken care of, any kind of complaints which are made to the administration are heard properly. That's what DG has assured on the ground. We'll try and play out more reactions for you. We'll try and listen into what's happening on the ground. ভাঙচুর করা হয়েছে, তারপরে সেই মহিলার বক্তব্য শোনেন এবং তার অর্থাৎ তার স্বামী তিনি বেরিয়ে এলেন। তিনি একদম বলেন যে কেন আইন তুলে দিচ্ছি, আমাদের কথা তো শুনতে হবে, তার কারণ তাদের কথা কোনো শোনা হয় না। পুলিশের কাছে বারবার গেছেন, পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, ফলে তাকেও কিন্তু উচ্চস্বরে কথা বলতে শোনা যায়। তিনি The West Bengal DG Rajiv Kumar in Sandesh Khali right now, getting us more details on this entire story is my colleague Kamalika Sengupta. She's been reporting from the ground. That's the DG interacting with the locals on the ground. One of the biggest complaints that the opposition has made is that the administration has not been sensitive to the concerns and complaints that were raised by the locals there. The entire administration and the police machinery was working at the whims of a TMC leader and a local leader. To take care of all of those concerns and to dispel the notion that women need to be under some kind of fear and they can't come forward and lodge a complaint. Now the West Bengal DG has come forward and he is, I believe, listening to the complaints which the locals are raising when the top officer has hit the ground running. One wonders if this could have happened earlier, if the administration could have been far more sensitive and not waited for this political controversy to hear the complaints of the locals or the kind of exploitation that they have been facing at the hands of the local goons. We'll try and listen into the DG once again. আবার আপনাদেরকে নিজের ভূমিকা একটু দেখতে হবে। আপনারা যে আমরা সবাই যারা আছি আমাদেরকে রুল অফ ল এস্টাবলিশ করতে হবে। রুল অফ ল মানে এটা নেই কি আমার প্রতি অন্যায় হয়েছে তাহলে আমি অন্য লোকের প্রতি অন্যায় করতে পারি। ওটা যেটা আছে পদ্ধতি হিসাবে আছে আর আমরা খুব সব জায়গায় করাচ্ছি। বলকি কিছু কিছু লোক যেটা চায় না কি মানুষের তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়, ওরা এরকম আর্টিফিশিয়াল কিছু কিছু জায়গায় যেটা আমরা বুঝতে পারি কোন জায়গায় আর্টিফিশিয়াল আগুন লাগিয়েছে কোন জায়গায় মানুষ লাগিয়েছে। ঠিক আছে, আমরা এটা যে The West Bengal DG Rajiv Kumar goes on to say that rule of law is going to be established in Sandesh Khali. He also goes on to say that rule of law does not mean that it's only going to be one side which is going to be affected, but anybody belonging to any political party, if they try to disrupt the law and order situation, action will be taken against them. He goes on to say that different kinds of methods have been deployed in Sandesh Khali. They have put in CCTV cameras, the human intervention, which means police officers hitting the ground. All of them are present, all kind of efforts are being taken. আমরা সৎপথে ওটা করব। আমরা কালকে আমি আপনাকে এই জন্য বলছি আজকে ফার্স্ট পেজে বেরিয়েছে কি ওখানে মানুষ মাঠ ক্যাপচার করেছে। আপনারা নিজের চিন্তা নিজে আপনারা তো ছিলেন ওখানে। এরকম যদি টেবিলে বসে ইয়েলো জার্নালিজম ও পেড জার্নালিজম করে ওটাও গলত আছে। আমাদের নিশ্চয়ই আমরা যদি যেরকম আপনারা দেখলেন একজন বললো আমার এক বছর আগে একটা বাড়ি ভাঙচুর, আমরা ডেফিনেটলি দেখব, কিন্তু এর মানে নেই কি উনাকে অধিকার আছে কি উনি কারো বাড়ি ভেঙে দিতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। That was West Bengal DG Rajiv Kumar saying that it is not true that that the police administration is not doing its job. We're cutting across the press conference of the DG. अधिकारी, महिला सांसद और विधायक उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं,
मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। आपत्ति की बात यह है कि इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं कि पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं ना कहीं उन पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। इसलिए यह विषय बहुत संवेदनशील है और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां शेख, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं कि साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। यह एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है। और उसे हम कह सकते हैं कि वह एक सेकुलर प्रोटेक्शन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह घटना इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। और उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता इस विषय के लिए नौटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदेश खाली एक घटना नहीं, एक फिनोमिना है। जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास को भूल जाओ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह एक फिनोमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बर्बाद किया है। एक जनश्रुति है बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं। महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुआत है। 16 अगस्त 1946 को जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदुओं का नरसंहार कराया था, जो सोहरावर्दी ने किया था, उसी नक्शे कदम पे ममता बनर्जी है। तो नोआखाली से लेकर संदेश खाली तक ये बंगाल के दर्द की एक दर्दनाक दास्तां है, जो सिर्फ इस बात पर प्रेरित है कि 46 में भी ये सोचते थे कांग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो, बस हमारा अभी का राज बचा रहे, आगे बंगाल को जो होना है वो हो जाने दो। और बंगाल आधा चला गया हमारे हाथ से। आज वही मानसिकता है कि कट्टरपंथी आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिए रहो, फिलहाल की अपनी सत्ता बचाए रखो, भविष्य में जो होना है वो होता रहे। इसलिए यहां पर जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं
और जो मौन समर्थन दे रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। व्याध समझते हैं ना, कसाई। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी आज चुप बैठे हुए इन घटनाओं पे। और मैं इसके आगे दूसरा विषय कहता हूं, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इवन मैं भी याद दिलाना चाहता हूं, कर्नाटक में भी दलित कांग्रेस के नेता थे, दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके यहां भी यही तगड़े वाले वोट बैंक ने हमला कर दिया था। अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे। वो बेचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे, बाद में पार्टी भी छोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, उसे एक लाइन में समझिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिंदू इंडाउमेंट एक्ट आया था, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण करने का नेहरू जी के समय में, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और 2 बार कोर्ट ने खारिज किया। मगर इसके बावजूद कानून बनाकर उसे बनाया गया। साहब, एक तरफ विचार यह है और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड का कानून। देखिए साहब, कैसे तराजू पे तौला जाता है। आप यह समझिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी, पुनः मैं कह रहा हूं, वो अब समाप्त हो गई, वो एक अलग विषय है। इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वैश कर दिया जाए तो कानून बनाकर मंदिरों पर टैक्स लगाया, मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण किया और उधर हज सब्सिडी दी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। इसलिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं, राजनीति, दलगत राजनीति और चुनाव, इससे कहीं बड़ा यह विषय है, क्योंकि इसने भारत को पिछली शताब्दी से लेकर इस शताब्दी तक भारत के समाज को भी नष्ट किया है।